ओके चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, वॉइस आ रहा है सबको ठीक से? चलो, लास्ट सेशन में हमने देखा था क्लास, देन ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाट आर द instance variable, what are the instance methods. Okay, so what is this class? Class is nothing but the, we can say it is a blueprint. Okay, हमारे सामने जो भी दिख रहा है that is the class. For example, laptop is a one class. So that class will be described with the properties. Okay, and that class have the some function. For example, laptop क्या काम करता है? पेंटिंग करता है, अगेन ड्राइंग करता है, अगेन कोडिंग करता है. Okay, with the help of laptop we can perform the painting, coding, etc. So these are the tasks. So class is nothing but the, we can say, the template of the object. So there are the number of the laptops, so that laptops are the called as objects. So object is a, we can say, the copy of that class. Okay, for example, we'll take the example of that in a company employee. So that employee is a one class. So how we can define the class? Chalo, this is the class employee. My voice is audible? Yes, guys. Yes sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir, audible. Class contain the special method that is called as, yes, what is this init? Anyone? Thunder method. Dunder. It is also dunder means it is a magic method. Means these are the special methods in your Python. But in your object-oriented programming, this init is called as your constructor. Okay? ऐसे बहुत सारे डंडर मेथड है, हम देखेंगे बहुत सारे डंडर, दैट इज मैजिक मेथड है, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है. बट दिस इनिट हैव द सम मीनिंग. उसका मीनिंग क्या है? इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर. इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर. ये तो सबको समझ में आ गया. कंस्ट्रक्टर, हाँ सर. कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज अ, वी कैन से इट इज अ लाइक अ फंक्शन. कंस्ट्रक्टर क्या एक फंक्शन है, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट इज कॉल्ड एज योर मेथड. इज कॉल्ड एज योर मेथड. ओके, सो दिस कंस्ट्रक्टर, देखो मैंने क्या क्या लास्ट सेशन में कवर किया था अबाउट द कंस्ट्रक्टर. So this constructor will be, we can say it is a special method in Python in object oriented. Again, this constructor name will be start with the name. किधर कैसे start होता है? Name of the constructor क्या होता है? F __. अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट. ब्रैकेट में कंपलसरी फर्स्ट पैरामीटर क्या रहता है? Self. सेल्फ रहता है. सेल्फ मीन्स क्या है? Current object. करंट ऑब्जेक्ट, राइट. ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? कब एग्जीक्यूट होता है? एनीवन? Whenever we create an object. Okay, whenever we can say your constructor executed the automatically at the time of object creation, right ना? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है ना इनिट. यस ना. बट नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है? नॉर्मल फंक्शन समझो मैंने डिफाइन किया, डिफाइन हेलो, तो मुझे वो फंक्शन कॉल करना. समझो फंक्शन के अंदर कुछ तो स्टेटमेंट्स है, कुछ तो टास्क है. सो टास्क कब परफॉर्म होते हैं? आफ्टर कॉलिंग दी फंक्शन. कॉल कैसे करते हैं? हेलो राउंड ब्रैकेट. बट this constructor in object oriented programming in a Python, this will be called automatically. Automatically कब कॉल होता है? At the time of your object creation. Understand up to this one? Yes, understand.
यस सर. ओके चलो देखते हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉय क्लास लिया है ना मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल लास्ट सेशन में कवर किया है, फिर से रिवाइज करता हूँ. चलो गाइस, समझो मेरे पास क्लास है एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? This class have the two parts. First part is a property that is called as, we can say, the variable, and second part is called as function. So function is called as methods. So this employee have the properties. क्या बोल सकते हैं हम? For example, employee have the, I say, e name. E name means employee name. E age, employee age. Okay. Again, I say employee designation. शॉर्ट में लेता हूँ डिजाइन. ओके डिजाइन चले, ओके फाइन. डिजाइन अंडरस्टैंड करो, डिजाइन मीन डेजिग्नेशन. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्लास एम्प्लॉय. सो उनका कुछ तो काम होगा, वो बाद में देखेंगे. चलो, सो कंपनी में एम्प्लॉय इज अ वन क्लास, सो दैट हैव दी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. समझो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए. आई से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड. सो तीनों ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ नाम राम. ओके. सो राम हैव द एज 27 and designation is developer. Okay. So this object is different than this another object, different than this third object. Yes or no? We can differentiate this first object by the second and third one. These 3 are the different. Yes or no? Yes, sir. Everybody with me? Yes sir. Okay. So this, for example, second object of the employee have the properties. I say Sham 30 and I say team leader. Okay. Again, third one is, we can say Ravi 32. I say designer, yeah, QA, quality analytics. And okay. So these 3 persons are the different. या राम एक ही है, श्याम एक ही है, रवि एक ही है, बट तीनों को प्रॉपर्टी सेम है. कौन सी प्रॉपर्टी? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन. ओके. फॉर एग्जांपल आई से दिस एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, दिस इज द एम्प्लॉय एज, दिस इज द एम्प्लॉय डेजिग्नेशन प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड अप टू दिस वन? क्लियर? ओके. देखो नेक्स्ट पार्ट. So this property of the object 1, this is the properties of object 2, and this is the object properties of the object 3. So this Ram 27 developer property belongs to object 1, not to object 2. Yes or no? Everybody with me? These properties means values, Ram 27 developer, this belongs to object 1, right? ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? राम 27 एंड डेवलपर. कौन से ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट 1 को. ओके. सो दिस इज दिस वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन. ये फॉर दिस ऑब्जेक्ट 1, दिस ऑल आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल. दिस ऑल आर द कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल? एनीवन? कोई बोल सकता है इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. हाँ बराबर है, हाँ बराबर है. हाँ फिर से बोलो, एनीवन? इंस्टेंस वेरिएबल हमने देखा अभी लास्ट 2 सेशन में, इंस्टेंस वेरिएबल ही देखा. क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल? वी कैन से दीज आर दी ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स. ये फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम की वैल्यू क्या है? राम. एम्प्लॉय एज की वैल्यू क्या है? 27. एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या है? डेवलपर. दिस बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट 1, नॉट ऑब्जेक्ट 2. ये वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है? ऑब्जेक्ट 1.
So these values, these variables are the called as instance variable for the object 1, right? Clear everybody? Instance variable क्या होता है? Yes or no? Everybody clear? सर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास होगा ना, क्या क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इंस्टेंट वेरिएबल. Instance variable is a इंडिविजुअल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. अभी देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वी कैन से इट इज अ कॉपी ऑफ द क्लास. ओके, सो एक क्लास की कॉपी है. सो क्लास जैसा दिख रहा है बट क्लास नहीं है, वो क्लास जैसा दिख रहा है. इस क्लास की तरह कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की खुद के प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे, खुद के प्रॉपर्टी की कुछ तो वैल्यू होगी. प्रॉपर्टी मीन्स क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स. जो खुद का है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस. क्लियर? इंस्टेंस मीन्स क्या होता है? इंस्टेंस मीन्स क्या है? वो खुद के ऑब्जेक्ट की, जो अभी करंट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल करंट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट 1, खुद की प्रॉपर्टीज वेरिएबल कौन कौन से? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय एड्रेस. So these RAM 27 developer, these all are the called as instance variable to the object 1. क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा. चलो एम्प्लॉय की एक कंस्ट्रक्टर लेता हूं. क्या गया? चलो आ गया. क्या बोलेंगे हम? सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम. चलो अभी एम्प्लॉय नेम में मैं रखता हूँ रवि. अभी आप ही बोलो एग्जीक्यूट कैसे होगा. चलो सेल्फ डॉट ऐसे एम्प्लॉय एज इज इक्वल्स टू 30. अगेन सेल्फ डॉट एम्प्लॉय designation is equals to I say developer. ओके, चलो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? when the object is created. ओके, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं. चलो इनसाइड द ऐसे कंस्ट्रक्टर. चलो इधर तक तो सबको समझ में आ गया. देन अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ऐसे एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट. इट क्रिएट द वन ऑब्जेक्ट. यस और नो? इट क्रिएट द वन ऑब्जेक्ट. एक वो ऑब्जेक्ट बनाएगा. कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएगा? फर्स्ट वाला. उसको कुछ रेफरेंस दिया है क्या? कुछ नाम दिया है क्या? नाम दिए क्या कुछ? बस वो बनाएगा. क्लियर अप टू दिस वन? यस गाइस, ये इसका मीनिंग क्या है? चलो एनीवन कंसोल में क्या आएगा आप ही बोलो. कंसोल में क्या आएगा अभी? इनसाइड कंस्ट्रक्टर. इनसाइड कंस्ट्रक्टर और क्या काम करेगा? और कुछ तो काम करेगा. उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो सेट कर देगा रवि 30 और डेवलपर. ओके, खुद के जो भी वेरिएबल्स है वो सब सेट करेगा ना. जैसे कि वो खुद के वेरिएबल्स क्या क्या है? ई नेम किसको सेट करेगा? वो रवि को. बराबर है ना. और अगेन ई एज किसको सेट करेगा? 30 को. अगेन ई डेजिग्नेशन किसको सेट करेगा? वो डेवलपर को. ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा बट ऑब्जेक्ट को अभी तक मैंने कुछ नाम दिया है क्या? रेफरेंस दिया है क्या? नहीं. ओके, समझो अभी हमारे कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और एम्प्लॉय को आईडी ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं ना. सेम हियर. समझो आई वांट्स टू गिव द पर्टिकुलर रेफरेंस टू दैट योर ऑब्जेक्ट. वी कैन से for example I say E1 is equals to employee. What is the meaning of this one? E1 is a reference to the your object first.
ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसका हम निकनेम बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं हम उसको? निकनेम। क्या है निकनेम? E1, राइट ना? एवरीबडी क्लियर अप टू दिस टर्म? यस सर। ओके, एवरीबडी क्लियर? यस सर। ओके चलो, अभी आप ही बोलो गाइस क्या होगा। चलो इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। अभी आप बोलो क्या होगा इफ आई से E2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, तो क्या होगा? एनीवन? यस, क्या होगा? एनीवन? सेकेंड ऑब्जेक्ट। एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और वो क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। सेम इंस्टेंस वेरिएबल किसको आएंगे अभी? सेकंड ऑब्जेक्ट को। बट सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नेम क्या होगा? यस, E2। इसका नाम क्या होगा? E2। बट ये सब प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सेम रहेगी, बट वो खुद की रहेगी, वो खुद की रहेगी। This property not belongs to E1 and this E1 properties, this all properties belongs to only E1, not E2. Okay, everybody understood this term? जो भी इसको असाइन होगा, क्या असाइन होगा? कौन कौन सी वेरिएबल असाइन होगी अभी इसको? ई नेम, सेम वैल्यू होगी ना? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सेम डिक्लेरेशन। सेम। और क्या होगा? ई डिजाइन। ये सेम किसको होगा? सेकंड ऑब्जेक्ट को। बट ये सारे जो है ये किसके? वी कैन से ये सारे जो है ये किसके? सेकंड ऑब्जेक्ट के, नॉट अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, दिस E2 is a reference variable. Okay, and this is the reference variable for E1. Clear up to this term? Everybody clear? यस सर। ओके चलो, अभी आप ही बोलो। E3 is equals to ऐसे एम्प्लॉय, क्या होगा? थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका नाम क्या रहेगा? E3। अगेन सेम प्रॉपर्टीज होगी उसको, बट वो खुद की रहेगी। तीनों में कुछ शेयर किया है क्या? नहीं किया है, वो खुद का है प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स। those variable belongs to that object is called as your instance variable and those methods belongs to that object is called as your instance methods. Clear? But okay, देखो अभी नेक्स्ट एडवांस टॉपिक। those variable belongs to only class, those variable belongs to only class, that variable will be shared by each and every object. ओके, मेरा स्टेटमेंट क्या है? सुना क्या सबने? जो वेरिएबल किसमें प्रेजेंट है? ओनली इन क्लास, ओनली इन क्लास, that variables will be shared by number of object of that class, like a E1, like a E2, like a E3. So that variables are called as class variables. That variables are called as class variables. Clear? Okay, everybody clear? यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट अभी आप ही बताओ क्या होगा। चलो थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी कुछ तो करता, सॉरी। E2 is equals to E1. Okay, again E3 is equals to क्या होगा? E2 और E3 सेम ऑब्जेक्ट, तीनों सेम ऑब्जेक्ट को अभी पॉइंट कर रहे हैं। ओके, विल चेक आउट दैट। कैसे चेक करते हैं? ऐसे प्रिंट E1 कॉमा E2 आईडी से चेक हो सकता है ना सर? आईडी ऑफ E1, E2, E3 से। देखो, आप ही देखो। तीनों का एड्रेस क्या है? देखो,
85B80, 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 इसका नाम, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बोल सकता है क्या? एक ही ऑब्जेक्ट के एक तीन ही रेफरेंस आईडी है सर। इस क्लास का, इसका मीनिंग क्या है? हमने एक क्लास है हमारे पास, इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। उस ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया है, हम क्या बोलते हैं, निकनेम। निकनेम रहता है ना, किसी का सोनू रहता है, पापा उसको मोनू बोलते हैं, मम्मी उसको सोनू बोलती है, भाई उसको भैया कहता है। दीज आर दी निकनेम्स ना। सेम ईयर ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है तुम्हारा, बट उसको रेफरेंस कौन है? 1, 2, 3 रेफरेंस वेरिएबल्स। यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? इधर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, बट उसको रेफरेंस कितने हैं? E1, E2 एंड E3। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? सर इनहेरिट नहीं हो रहा है ना? क्या क्या? इनहेरिट भी हो सकता है ना, इनहेरिटेंस के फॉर्म में भी आ सकता है ना। इनहेरिटेंस एक ही पैर इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं होगा ना, इधर क्या होगा इनहेरिटेंस? रेफरेंस आईडी एक ही आ रहा है ना सर। से ही E2 जनरेट हुआ और E2 से E3 जनरेट हुआ। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी करंट ऑब्जेक्ट में है, क्या ऑब्जेक्ट में है, वी कैन से दी वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स, वो सब सेम रहेंगे। किसमें? व्हेनेवर आई से ई डॉट समथिंग, फॉर एग्जांपल नाम क्या दिया था, E1, E2 एंड E3। E1 किसको पॉइंट करेगा? इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। E2 को इसको पॉइंट करेगा, इसको ही पॉइंट करेगा। E3 किसको पॉइंट करेगा? इसको ही पॉइंट करेगा। अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी क्लियर? रेफरेंस वेरिएबल, यस और नो? ओके, चलो अभी आप बोलो। आई से E4 इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। अब E4 किसको पॉइंट करेगा? E4 किसको पॉइंट करेगा? एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को। E4 किसको पॉइंट करेगा? ये सेम ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट करेगा, इट विल क्रिएट दी अनदर ऑब्जेक्ट ना, उसके ऑब्जेक्ट को यस पॉइंट सर। करेगा, राइट ना? यस सर। ओके, सो E4 रेफरेंस वेरिएबल टू दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं, वो किसको पॉइंट कर रहा है? सेकंड ऑब्जेक्ट को। सो सेकंड ऑब्जेक्ट का मुझे फॉर एग्जांपल एड्रेस चाहिए, वी कैन से दी प्रिंट E4। देखो आप, अलग है ना सेकंड वाले का, फर्स्ट वाला सेम है। अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी क्लियर? हाँ सर। ओके, चलो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया, इसको कमेंट करता हूँ मैं। चलो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ऐसे है। चलो इससे थोड़ा सा एग्जांपल अलग लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे क्लास इज सैंपल, मेरे पास एक क्लास है सैंपल डिफाइन, एक कंस्ट्रक्टर लिया मैंने, ओके। सो ऐसे सेल्फ डॉट ए is equals to 10, okay. Self dot b is equals to 20. Again I say another function that is method, I say a1, चलो a1 एक लेता हूँ, self, उसमें किया मैंने self dot c, okay, sorry, self dot c is equals to 30, okay। ये तो हो गया हमारा क्लास। ऐसे p1 is equals to test, तो क्या होगा? सॉरी टेस्ट नहीं, हमारी क्या है, क्लास सैंपल है। चलो p1 क्या है हमारा, एनीवन? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है? सैंपल। क्लास से बाहर है ना, सॉरी। यस, हाँ बराबर है। वैष्णवी कौन बोल रहा था? बराबर है। देखो अभी हम प्ले कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, चलो इतना ही देखो। अभी आप क्लास के अंदर क्या है? क्लास के अंदर क्या है? फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ओके, दिस इज कॉल्ड एज A1 इज कॉल्ड एज मेथड। मेथड मीन्स क्या है? सिंपल फंक्शन है, बट वो क्लास के अंदर है। दैट्स वाई फर्स्ट पैरामीटर क्या है? सेल्फ है। बराबर है ना? एवरीबॉडी क्लियर? चलो यस सर। क्लास कौन सा है हमारा? सैंपल। सैंपल के अंदर क्या है? सैंपल के अंदर क्या है तुम्हारा? एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में क्या वैल्यू सेट कर रहा है? वो ए की वैल्यू क्या सेट कर रहा है? 10। और बी की वैल्यू क्या सेट कर रहा है? 20। उसके अलावा उसके अंदर सैंपल क्लास के अंदर और एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। कौन सा है वो? A1 ना। A1 क्या कर रहा है? p की वैल्यू सेट कर रहा है 30। ओके, इधर तक समझा सबको? एवरीबॉडी क्लियर? एक क्लास बनाया है, दैट्स इट। ये तो समझा सबको? एवरीबॉडी फाइन विद दिस टर्म? हाँ। So my question is that if I create the one object, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल आई से आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट T1। T1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो T1 में क्या आएगा? यस, T1 में क्या आएगा? यस, T1 जो वेरिएबल क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर कौन है? अभी फर्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर। वो कौन एग्जीक्यूट करेगा? ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मींस बाय डिफॉल्ट क्या कॉल करेगा? वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है बाय डिफॉल्ट। एवरीबॉडी क्लियर अप टू दिस टर्म? यस। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मींस T1 में दो इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे। कौन से? फर्स्ट वेरिएबल क्या है? ए, उसकी वैल्यू सेट करेगा वो 10। और सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा बी, उसकी उसकी वैल्यू रहेगी 20। ये तो क्लियर हो गया सबको? जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तब क्या होगा? क्लियर? हाँ। ओके, उसके बाद वो क्लास के अंदर एक मेथड है, उसका नाम है A1। सो वो प्रॉपर्टी, वो मेथड ऑब्जेक्ट को शेयर हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है T1 डॉट A1, तो कौन सा मेथड कॉल करेगा? ऑफ द योर क्लास। So this is called as your instance method. This is called as your instance method. तो शेयर क्या करेगा? T1 में क्या आएगा? A1 आएगा। A1 फंक्शन भी आएगा T1 में। वो T1 के अंदर क्या कोड कर रहा है? C की वैल्यू सेट करो। C की वैल्यू सेट क्या करेगा वो? 30। मीन्स C is also called as instance variable. C is also called as instance variable. So मेरा स्टेटमेंट क्या है? देखो फिर से, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? टू इनिशियलाइज द योर इंस्टेंस वेरिएबल, बट यूजिंग द फंक्शन, यूजिंग द मेथड, वी कैन आल्सो इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। देखो फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर हमने कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल बनाया? सी बनाया। हम कंस्ट्रक्टर में भी इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सिंपल मेथड में भी इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर अप टू दिस टर्म? Okay, chalo. Again, if I say print P1 dot dict, क्या प्रिंट होगा? Anyone? अरे क्या प्रिंट एबीसी होगा? की वैल्यू, एबीसी के वैल्यू।
अभी कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल है, T1 को कौन कौन है, फर्स्ट वाला कौन है, ए है, A सेकंड वाला B कौन है, C बी, B थर्ड वाला कौन है, सी, राइट ना। तीनों की क्या होगी, वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो आ गया, आ गया क्या, आ गया क्या, सी आ गया, नहीं sir. नहीं ना, क्यों नहीं आ रहा है, एनीवन क्यों नहीं आ रहा है। सो वो मेथड है ना, वो मेथड। मेथड है ना, हमने कॉल ही नहीं किया, कॉल कैसे करेंगे हम, T1 डॉट मेथड का नाम क्या है, A1 A1 ना। तो वो कॉल करने के बाद किधर जाएगा, एट दिस मोमेंट, और सेल्फ, सेल्फ मीन्स क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, T1 है ना। T1 के C की वैल्यू क्या करो, 30 करो। सो अभी क्या आएगा डिक्शनरी, देखो अभी, चलो फर्स्ट वाली मैं इधर प्रिंट करता हूँ, और आफ्टर कॉलिंग दी A1 इधर प्रिंट करता हूँ। चलो कंसोल में अभी क्या आएगा आउटपुट, आप ही देखो, अंडरस्टैंड। हाँ सर, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ना। एक्सिस मॉडिफायर है ना कंसेप्ट, जैसे कि आपने जावा में सुना होगा, C++ में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ना। हाँ सर वही। हाँ देखेंगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये तो समझ में आ गया। मीन्स क्लास के अंदर जो भी है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में एक्सेस होगा, अंडरस्टैंड। अभी देखो समझो, मैंने लिखा इधर क्लास में लिखा x इज इक्वल्स टू 20, तो ए वेरिएबल किसके अंदर है, किसके अंदर है, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर है, x is equals to 20, this variable is points to your class, so this is called as class variable, this is called as class variable। लास्ट ईयर इसका प्रीवियस ही मैंने एक्सप्लेन किया। सो क्लास वेरिएबल क्या होता है, इसके पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था, क्लास वेरिएबल क्या रहता है, क्लास के आउटसाइड यूज नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट होता है कुछ। वो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा ना, सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का खुद का नहीं, वो किसका है, क्लास का है। सो ऑब्जेक्ट का जो खुद का है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, राइट ना। इधर मैंने किधर सेल्फ यूज किया है क्या, सेल्फ यूज किया है मैंने, सेल्फ यूज किया है क्या किधर, नहीं ना। ये किसका है, क्लास का है, क्लास का मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट सब वो शेयर कर सकते हैं, बट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सबकी, सबके एक्स के लिए वैल्यू 20 रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता कि यार एक्स मेरा है, एक्स मेरा है, ये सबका है एक्स, अंडरस्टैंड। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएगा वो सबकी वैल्यू सेम रहेगी, फॉरगेट अबाउट दैट, हम देखने वाले डिटेल में। ओके अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट। हाँ ओके चलो, फर्स्ट हमने क्या देखा था, इंस्टेंस वेरिएबल किधर बना सकते हैं हम, इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। सेकंड हमने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल किधर बना सकते हैं, इनसाइड दी मेथड आल्सो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड, यस और नो, राइट ना। चलो अभी आओ आउटपुट बताओ, आई से सेल्फ डॉट डी इज इक्वल्स टू 50, तो क्या होगा, एनीवन। कॉल करने पे और सी और डी एट्रीब्यूट्स ऐड कर देगा। ओके दैट्स इट। अंडरस्टैंड दिस वन, yes ओके चलो। और देखो अभी ये भी किया मैंने, नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ, देखो ऐसे P1 डॉट A1 कॉल किया है, फाइन। नेक्स्ट आई से T2 इज इक्वल्स टू सैंपल, T2 क्या है, अभी कोई बोल सकता है T2 क्या है, second object सेकंड ऑब्जेक्ट है, बराबर है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई से T2 डॉट E इज इक्वल्स टू 100, उसके बाद मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, T1 डॉट डेट और
प्रिंट T2 डॉट डिक्ट। आउटपुट क्या आएगा, कोई बोल सकता है अभी? एम्प्लॉय न्यू क्रिएट हो गया क्या सर वेरिएबल? ये जो ई क्रिएट होगा वो किसके अंदर होगा? T2 के अंदर। T2 के अंदर, राइट ना? वो T2 का खुद का है, T1 का नहीं है, बराबर ना? यस और नो? ओके, चलो मैं इधर लिखता हूँ T2। ओके, पहले इतना ही देखते हैं। आउटपुट देखो एक बार। T1 का क्या क्या है देखो, ये तो बराबर है ABCD T1 का। T2 का क्या है ABECD, क्यों नहीं आया, कोई बोल सकता है? यस, क्यों नहीं आया CD? सर T2 में मेथड कॉल नहीं किया। T2 का इंस्टेंस मेथड ही कॉल नहीं किया, राइट ना? तो मैंने किया T2 डॉट T1। अभी क्या आएगा देखते हैं। आ गया ABCD। क्लियर अप टू दिस वन एवरीबॉडी? क्लियर अप टू दिस वन? यस? तो कुछ डाउट अप टू दिस पॉइंट? देखो, हमने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल किधर हम बना सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल फर्स्ट क्या देखा था, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने क्या बनाया था इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, क्या बनाया था अभी देखो, ए बी बनाया ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया ना। यस, एवरीबॉडी क्लियर? हर एक ऑब्जेक्ट को ए बी कंपल्सरी रहेगा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा वो ए बी कंपल्सरी रहेगा। यह सबको समझ में आ रहा है क्या? चलो अभी मुझे बताओ कि T3 मैंने बनाया है सैंपल, और T3 का भी डिक्शनरी मैंने प्रिंट किया, तो क्या आएगा? ए बी। ओनली ए बी ना? जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंपल्सरी उसका क्या रहेगा, तो कम से कम दो तो रहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, राइट ना? दो तो कंपल्सरी रहेंगे, कौन से, ए एंड बी, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज दैट टू वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो, तब। देखो ए बी आएगा T3 में कंपल्सरी, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा सब में ए बी तो आएगा कम से कम। ओके, क्लियर? सो फर्स्ट वे ऑफ द इनिशियलाइज द योर इंस्टेंस वेरिएबल इज क्या, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग, हमने क्या यूज किया था, सेल्फ वेरिएबल। सेल्फ वेरिएबल मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। देखो इधर हमने सेल्फ यूज किया ना, सेल्फ डॉट ए। सेल्फ मीन्स क्या, करंट ऑब्जेक्ट। जब T1 को कॉल करेगा तो सेल्फ कौन होगा, T1। T2 का कॉल होगा कंस्ट्रक्टर तो सेल्फ कौन होगा, T2। T3 का कॉल होगा तो सेल्फ कौन होगा, T3, राइट ना? राइट ना? यस गाइस? ओके, चलो अभी सेकंड में हमने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, इनसाइड दी वी कैन से दी इंस्टेंस मेथड, इनसाइड दी इंस्टेंस मेथड। सो कौन सी बनाई थी मैंने, A1। सो A1 के अंदर मैंने क्या क्या बनाया इंस्टेंस वेरिएबल, सी एंड डी। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट A1 इंस्टेंस मेथड को कॉल करेगा उसके अंदर सी एंड डी जाएगा। जैसे कि T1 को कॉल किया, T1 का A1 कॉल किया, तो T1 में दो इंस्टेंस वेरिएबल ऐड हो गए, दैट इज सी एंड डी। अगेन T2 का कॉल किया है तो उसमें सी एंड डी रहेगा, बट T3 का इंस्टेंस मेथड कॉल ही नहीं किया तो उसके अंदर जाएगा क्या वो सी एंड डी, नहीं, ओनली ए एंड बी आर देयर। Yes, understand? Second way of the initialize that instance variable, create the instance variable, and third way is, हमने क्या देखा था थर्ड वे, यस कोई बता सकता है?
ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू असाइन करनी है। ओके, ये T2 डॉट ई मीन्स क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउटसाइड दी क्लास, आउटसाइड दी क्लास है ना वो, बाय यूजिंग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस है ना, देखो T2 क्या है तुम्हारा, रेफरेंस वेरिएबल है ना, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ना, सो यूजिंग दी object reference variable we can also create the instance variable. Understand? Three way to create the instance variables. Any doubt up to this point? Yes guys, कुछ डाउट है क्या? चलो next my question is that how to access the instance variable. चलो my question is how to access the instance variable. मुझे क्या क्या वे बताओ, क्या क्या हो सकता है मुझे अभी इंस्टेंस वेरिएबल T1 के इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन है? AB पूरे CD T1 के फिर से देखो ठीक से, T1 का क्या है इंस्टेंस वेरिएबल्स ABCD, T2 का क्या है ABCDE और T3 का क्या है ANB ना, राइट ना? मुझे वो एक्सेस करने का है, कैसे करेंगे? व्हाट आर द वेरियस वे? बोलो कैसे एक्सेस करेंगे? इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। मुझे T3 का, देखो मुझे T3 का ए बी प्रिंट करने का है, कैसे हम लिख सकते हैं? ऐसे प्रिंट, हाँ बोलो एनीवन, अरे हो गया ये ऑलरेडी हमारा। T3 का ए मुझे प्रिंट करने का, ऐसे T3 डॉट, यस T3 डॉट, ये ना T3 डॉट ए, तो किसका ए प्रिंट होगा? किसका प्रिंट होगा? अरे कौन से ऑब्जेक्ट का? T3 का। T3 का ना, देखो आउटपुट। ओके, पहले क्यों आ गए कोई बोल सकता है? ये प्रिंट डिक्शनरी कब है? पहले क्या है? प्रिंट T3 डॉट ए, दैट्स व्हाई इट से दैट 10। T3 का ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 10 है। उसके बाद वो डिक्शनरी प्रिंट किया है T1 का, T2 का एंड T3 का। क्लियर? सो वी कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, ये तो आउटसाइड द क्लास है ना, आउटसाइड द क्लास यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल। ये T3 क्या है तुम्हारा? रेफरेंस वेरिएबल है। सो एवरीबॉडी गॉट इट? सेकंड वे क्या रहेगा समझो, मैंने A1 के अंदर किया है प्रिंट सेल्फ डॉट ए, तो क्या प्रिंट होगा? चलो इसको मैं थोड़ी देर कमेंट करता हूँ। चलो अभी कंसोल में क्या आएगा आउटपुट? प्रिंट T1 डॉट, चलो अभी बोलो आउटपुट क्या आएगा कंसोल पे? मुझे कंसोल पे बोलो, कंसोल पे क्या आएगा आउटपुट? T1 का डिक्शनरी प्रिंट होगा। प्रोग्राम ठीक से देखो, ठीक से देखो। सर पहले ए का वैल्यू प्रिंट होगा, बाद में T1 का डिक्शनरी प्रिंट होगा। ओके, और कोई? पहले से ए का वैल्यू प्रिंट होगा, बाद में वो जो डिक्शनरी में ABCD जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो दिख जाएंगे। और कोई बाकी लोग? चलो देखो, मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू सैंपल। मेरी आवाज आ रही है ना सबको?
यस सर। यस सर, आ रही है। T1 इज इक्वल्स टू सैंपल, तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉल होता है? कॉल क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, क्या करेगा वो? यस, हाँ बराबर है। ये तो थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। ओके, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए? T1 ना। चलो, ऑब्जेक्ट बनाए T1। ओके, सो T1 जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहा है वो? दो इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल। दो इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है, ए और बी। ए की वैल्यू क्या कर रहा है वो? 10। बी की वैल्यू क्या कर रहा है? 20। राइट ना? ये तो क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है सबको गाइस? यस यस ओके सर। चलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आई कॉल दी वन इंस्टेंस मेथड जिसका नाम क्या है? A1। A1 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैं थोड़ा सा हेलो लेता हूँ। चलो, आई से हेलो, तो P1 डॉट हेलो। कौन सा उसने फंक्शन कॉल किया है? हेलो। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड। सो वो इंस्टेंस मेथड को कॉल करेगा हेलो। हेलो के अंदर आके, ओके, हेलो के लिए अभी सेल्फ कौन है? P1। अभी सेल्फ सेल्फ कौन है? T1 ना। यस और नो? यस सर। अभी हेलो कौन है? करंटली T1 है। ओके, सो हेलो के अंदर आके उसने क्या किया? प्रिंट सेल्फ डॉट ए। सेल्फ मीन्स कौन है अभी? T1। T1 की ए की वैल्यू क्या है अभी? अरे ए की वैल्यू क्या है? 10। 10। 10 प्रिंट करेगा ना? 10 प्रिंट करेगा ये वाला। ये क्या प्रिंट करेगा? 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है वो? अगेन दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाओ। कौन से? सी एंड डी। सी एंड डी की वैल्यू क्या है? 30 एंड 50। अगेन T1 के अंदर दो वेरिएबल रहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल 30, और डी की वैल्यू क्या रहेगी? 50। ये तो सबको क्लियर है? ये तो सबको क्लियर है? अभी T1 में कितने इंस्टेंस वेरिएबल है? 4। 4 इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, क्लियर अप टू दिस वन? अभी आउटपुट क्या आएगा आप बोलो? देखो, 10 क्या है? 10 किसकी वैल्यू है? एक ही। एक की। ए की वैल्यू। और वो ये बाकी तुम्हारे T1 की डिक्शनरी, मीन्स T1 में जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो। क्लियर? सो देखो, इधर हम एक्सेस कर रहे हैं ना, क्या एक्सेस कर रहे हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। सो इनसाइड द क्लास एक्सेस वेरिएबल कैसे कर सकते हैं? यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड। एंड आउटसाइड द क्लास, समझो मुझे T1 का डी चाहिए तो कैसे प्रिंट करेंगे? P1 डॉट डी प्रिंट होगा। So this P1 is called as reference variable of that object. So outside the class, we can display the instance variable with the help of that your reference variable. देखो, D की वैल्यू आ गई 50। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ सर, अभी यहाँ पे अपन क्या करें? T1 इक्वल टू सैंपल, मतलब सैंपल ऑब्जेक्ट का अपन रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? हम्म T1 को। हम्म तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि प्रिंट के अंदर सैंपल ब्रैकेट्स डॉट डिक्ट, ऐसा कर सकता हूँ क्या? कैसे बोल रहे हो आप? हम्म अब प्रिंट हम्म सैंपल, मतलब हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, डिक्शनरी वाला मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर। कैसे बोल रहे हो नहीं नहीं आप? नहीं, वैसे नहीं, T3 नहीं, डायरेक्ट सैंपल, उसको असाइन नहीं करना है, मतलब रेफरेंस नहीं देना है। सैंपल ब्रैकेट और हम्म, डॉट डिक्शनरी वाला मेथड। अभी देखो, आप क्या बोल रहे ऐसा हैं? हो आप क्या सकता है कर रहे क्या? हैं? आप क्या कर रहे हैं पता है क्या? ये तो आएगा, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। आप क्या कर रहे हैं पता है क्या? ये देखो, ये क्या आएगा? ओके। ओके,
इसका मीनिंग क्या कर रहे हो आप, दो लाइन का काम एक लाइन पे कर रहे हो। कौन सा? जैसे कि आप कर रहे हो D4 इज इक्वल टू सैंपल, और मुझे प्रिंट करने का है D4 का क्या, डिक्शनरी। बोथ आर दी सेम, ये दोनों लाइन आप एक ही लाइन पे लिख रहे हैं ना। अभी आप बताओ कि चलो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? उसको कोई तो रेफरेंस वेरिएबल देना ही पड़ेगा। रेफरेंस वेरिएबल नहीं है ना, तो ये बैड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं हम, ओके सर। बराबर ना? हाँ दिस इज द राइट वे, नो इशू। बट इसको रेफरेंस वेरिएबल हमारे पास नहीं है ना, इस ऑब्जेक्ट के हम साथ कैसे प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, मेथड क्या है, उसके साथ खेल ही नहीं सकते क्योंकि उसका नाम ही पता नहीं है। ओके क्लियर? यस सर। ओके चलो, अंडरस्टैंड इंस्टेंस वेरिएबल कैसे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दी सेल्फ, आउटसाइड द क्लास यूजिंग दी रेफरेंस वेरिएबल। चलो नेक्स्ट, आई वांट्स टू डिलीट द इंस्टेंस वेरिएबल। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कैसे डिलीट करेंगे? आउटसाइड द क्लास देखेंगे फर्स्ट वाला। चलो अभी ऐसे मुझे आउटसाइड द क्लास डिलीट करने का है T1 का C, तो कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट T1 डॉट C, तो क्या डिलीट होगा? चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आउटपुट आपके साइड से चाहिए, अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। चलो दो डिक्शनरी प्रिंट होगी, क्या आएगा अभी आउटपुट? यस गाइस बोलो, क्या होगा? T1 इज इक्वल टू सैंपल, क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, T1 के A और B की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल बनाएगा 10 एंड 20। T1 डॉट हेलो क्या करेगा? प्रिंट करो, क्या करो? A की वैल्यू, करंट जो ऑब्जेक्ट है T1 के A की वैल्यू प्रिंट करो। उसके बाद और दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाओ, कौन से? C एंड D। उसके बाद T1 डॉट डिक्शनरी किया, मीन्स T1 की डिक्शनरी दैट इज A B C D प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल करंट ऑब्जेक्ट का डिलीट किया, कौन सा? सी, और फिर से डिक्शनरी प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा? अरे सी डिलीट करने के बाद क्या प्रिंट होगा? ABD. ABD। देखते हैं, देखो आप, आ गया फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये 10 क्या है? गायब हो गया। 10 कौन सा है? इस प्रिंट का है, ये प्रिंट वाला 10 है। ये डिक्शनरी, आफ्टर डिलीटिंग सी के बाद डिक्शनरी प्रिंट करो, क्या? सी गायब हो गया। अंडरस्टैंड हाउ कैन डिलीट द इंस्टेंस वेरिएबल? यस गाइस क्लियर? यस सर। ओके दूसरा मेथड, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे इधर ही लिखता हूँ। अभी T1 इज इक्वल टू सैंपल, ऐसे प्रिंट T1 डॉट डिक्शनरी। उसके बाद मैंने हेलो कॉल किया, और हेलो में क्या कर रहा हूँ देखो, सेल्फ डॉट ए, उसको मुझे डिलीट करने का है। आई जस्ट यूज द डिलीट ओके चलो अभी आउटपुट बोलो क्या आएगा गाइस? ए डिलीट होगा अभी, ए और सी डिलीट होगा। फर्स्ट प्रिंट क्या होगा, सेकंड प्रिंट क्या होगा, और थर्ड प्रिंट क्या होगा? ठीक से देखो कोड, एवरीबॉडी ठीक से देखो। पहले ABCD प्रिंट होगा, बाद में BCD प्रिंट होगा, लास्ट में B और D प्रिंट होगा। यस दूसरा कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट प्रिंट क्या होगा,
सेकंड प्रिंट क्या होगा? सर फर्स्ट ए बी होगा, सेकंड हम्म बी सी डी, बी डी, बाद में क्या होगा? बी डी ना? राइट, बी डी। राइट। देखो, T1 इज इक्वल्स टू सैंपल, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा बाय डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो T1 में ए बी इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे। उसके बाद मैंने प्रिंट किया T1 डॉट डिक्शनरी, तो अभी करंटली इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं? दो ही है ना उसके पास, ए और बी। उसके बाद मैंने कॉल किया T1 डॉट हेलो। सो T1 डॉट हेलो में पहले उसने, समझो मैं इसको बाद में देता हूँ, उसने क्या किया हेलो में, और दो इंस्टेंस वेरिएबल ऐड किए, कौन से? सी एंड डी। बट उसने क्या किया है, ये जो ऑलरेडी है इंस्टेंस वेरिएबल उसको डिलीट किया। तो करंटली इंस्टेंस वेरिएबल कितने हो गए आफ्टर कॉलिंग द हेलो? ए को डिलीट किया मींस कितने हो गया अभी इंस्टेंस वेरिएबल? 3। यस है, कितने हो गए? 3। अरे ए डिलीट हो गया ना, अभी उसके पास ए बी सी डी था, बट उसमें से ए डिलीट हो गया, तो अभी क्या है उसके पास? बी सी डी प्रिंट होगा ना, ये प्रिंट करने के बाद, ये सेकंड वाला प्रिंट करने के बाद। उसके बाद उसने T1 डॉट सी प्रिंट किया, मीन्स T1 का जो सी इंस्टेंस वेरिएबल है उसको डिलीट किया। उसके बाद डिक्शनरी प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा? सी को भी वो डिलीट करेगा, ऑलरेडी ए डिलीट किया है, तो क्या रहेगा? बी एंड डी। देखो आउटपुट, yes guys, clear? Everybody clear? yes, clear? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या? यस सर। समझ में, सबको समझ में आ गया? चलो, आप ही बोलो कि हाउ टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने दो वे बताए थे। फर्स्ट वे क्या बताया था? इनसाइड क्लास कैसे एक्सेस करते हैं? सेल्फ कीवर्ड से यूजिंग सेल्फ कीवर्ड, ओके। आउटसाइड क्लास रेफरेंस वेरिएबल से यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, ओके। और हाउ टू डिलीट इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे करते हैं? फर्स्ट वाला क्या है? इनसाइड क्लास। सेम, इनसाइड क्लास कैसे डिलीट करते हैं? यूजिंग यस डिलीट कीवर्ड एंड सेल्फ कीवर्ड, जैसे कि डिलीट सेल्फ डॉट जो भी इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है वो, और आउटसाइड द क्लास डिलीट एंड रेफरेंस वेरिएबल। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ये तो क्लियर हो गया सबको? 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। यस गाइस, क्लियर? यस सर। ओके चलो, ऐसे इसको मैं कमेंट देता हूँ अभी। आपके साइड से आउटपुट चाहिए, ऐसे क्या है? हेलो है ना, T2 इज अ सैंपल, T2 इज अ हेलो। हेलो, मैं से T2 डॉट डिक्शनरी। चलो, क्या प्रिंट करेगा T2? कोई कोई भी बोल सकता है, आंसर दे दो चलो। सीरीई
सी डी ई. What about A and B? ए भी आएगा सर. ए भी तो बाय डिफॉल्ट सब ऑब्जेक्ट में आएगा ना. ओके, अभी बोलो आउटपुट क्या आएगा. फर्स्ट वाले का क्या आएगा. ए बी. T2 डॉट. फर्स्ट प्रिंट का क्या आएगा और सेकंड प्रिंट का क्या आएगा. फर्स्ट का ए बी आएगा, सेकंड का प्रिंट करेगा ए सी बी. डी. सेकंड वाला क्या प्रिंट करेगा. ये क्या B प्रिंट C करेगा. D. यस. सी डी ई. बी किधर गया. ए किधर B गया. C A डिलीट कर रहा है. ए डिलीट कर रहा है तो बी किधर गया. बी प्रिंट होगा ना. B C D. सी प्रिंट होगा, डी होगा और ई भी होगा ना. ये तो डिलीट कर रहा है. जब वो हेलो कॉल करेगा उसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल नए ऐड होंगे सी एंड डी, और बाद में डी भी डिलीट होगा एट द सेम मोमेंट. ए डिलीट होगा तो अभी बाकी क्या है. बी सी डी. बाद में है T2 डॉट ई. एक नया ई ऐड होगा इंस्टेंस वेरिएबल. राइट ना. तो देखो आउटपुट आ रहा है क्या. ए बी एन बी सी डी. Yes sir. क्लियर है क्या सबको. यस. ये T2 का ए डिलीट हो गया ना इधर. यस ना. T2 का जो ए डिलीट हो गया है उसका और T1 कुछ रिलेशन है क्या. एनीवन. क्या पूछा सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इधर क्या किया. क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफरेंस दिया है T3 में. अलग है. राइट ना. T1 का अलग है, T2 का अलग है और T3 का अलग है. राइट ना. यस. क्लियर. हाँ सर, समझा. हेलो. आवाज आ रहा है क्या. सर का नेट गया है सर क्या. आवाज नहीं आ रहा है आपका. आवाज नहीं आ रहा है सर. सर का आवाज नहीं आ रहा है.
हेलो। सर ने 2 घंटे का बोला था ना लेक्चर। ओके, हेलो भी गए, चलो नेट गया था, नेट का इश्यू है कुछ, तो सुबह से बहुत बार गए हैं। चलो, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। हाँ सर, अभी आ गया। ओके, चलो, इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? इंस्टेंस वेरिएबल। नहीं। ओके, अभी ये जो T1 का इंस्टेंस वेरिएबल है ये अलग है, ये T2 का खुद का अलग है और T3 का खुद का अलग है। ये डिलीट हो गया तो इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। T2 वो खुद का ए एक्सेस कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, वो खुद का है। T1 का डिलीट हो गया तो कुछ मतलब नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सिंपल, कुछ डाउट है क्या अप टू दिस पॉइंट? ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है देखो, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइम दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल फॉर द ऑब्जेक्ट? एनीवन? हाउ मेनी टाइम दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल फॉर द ऑब्जेक्ट? 1 time. और कोई बोल सकता है? और कोई बोल सकता है क्या आंसर? सर क्या पूछा, कनेक्शन का प्रॉब्लम था। मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो तुम्हारा यूनिट रहता है, ये कंस्ट्रक्टर रहता है ना, ये कब कॉल होता है? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉल होता है ना, ऑटोमेटिकली यस एग्जीक्यूट होता है ना ऑटोमेटिकली। तो ऐसे कितने बार वो एग्जीक्यूट होगा? सर जितनी बार जितनी बार ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट कर। होगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। बट मेरा क्वेश्चन है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? एक ही बार. एक ही बार होगा ना? टाइम सर। एक ही बार होगा ना? नहीं समझा सर, क्या? मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो तुम्हारा यूनिट रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है, वो हर एक, अभी T1 के लिए वो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? एक बार। एक ही बार होगा ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 डॉट यूनिट, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं नहीं लिख सकता मैं, राइट ना? नहीं लिख हाँ। यस सकता, एक ही बार होगा। बट आई कैन से T1 डॉट हेलो, ऐसे कितने बार लिख सकता हूँ मैं? नंबर ऑफ टाइम लिख सकता हूँ ना? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. सर, स्क्रीन नॉट विजिबल। सॉरी, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नेटवर्क गया ना पूरा। ओके, चलो, स्क्रीन दिख रहा है आपको, राइट? हाँ दिख रहा है। हाँ। ओके, चलो, अभी मैंने T1 इज इक्वल्स टू सैंपल किया है। सो इस T1 के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? एक ही बार होगा ना? ओके, सो दिस इज द, वी कैन से दिस इज द स्पेशल मेथड। ये स्पेशल मेथड है, बराबर है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। वी कैन से इट इज अ डंडर, इट इज अ मैजिक मेथड। बट नॉर्मल इंस्टेंस मेथड जैसे कि हेलो, हम कितनी बार कॉल कर सकते हैं? देखो, T1 डॉट हेलो कितनी बार कॉल कर सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं ना? यस सर। कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कितनी बार होगा एग्जीक्यूट? एक ही बार होगा, ये ध्यान में रखो। क्लियर ऑल ऑफ यू? सर हाँ उसका सर, नेम क्लियर है। सेम ही रहेगा। क्या क्या? उसका नेम इनिटी रहेगा। हाँ, इनिट ही रहेगा, दूसरा नेम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम इनहेरिटेंस में देखेंगे, इनहेरिटेंस का एडवांस टॉपिक, एडवांस पाइथन, उस पर देखेंगे। ओके, क्लियर अप टू दिस टर्म ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल। तो लिसन ना, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है पहले सुनो। इंस्टेंस वेरिएबल क्या थे?
the instance variable is nothing but the variables. Okay, so these are the belongs to your objects. So हर एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल अलग रहेगा, बट स्टैटिक वेरिएबल क्या रहता है? These static variables values will not be vary with the object to object. Okay, such a type of the variables are called as your, we can say, static variables, and that variables are declared inside the class. For example, चलो एग्जांपल देखते हैं. ओके, इसके पहले समझो मुझे a एंड b है ना, सबका सेम है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल t2 इज इक्वल टू सैंपल किया, अगेन आई से t1 डॉट क्या है, हेलो. थर्ड कॉल हुआ सर. इसको डिलीट करता हूँ मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगेन t2 डॉट हेलो. चलो, और t1 और t2 में कौन कौन सी इंस्टेंस वेरिएबल हो गए? t1 में क्या हो गए, आप ही बोलो अभी. ए बी. ए बी सी डी, एबीसीडी हो गया ना. t1 का हेलो भी कॉल किया है, तो हेलो क्या कर रहा है? और दो इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है, राइट ना. हाँ. t2 के कितने इंस्टेंस वेरिएबल हो गए? यस, कितने वेरिएबल्स हो गए? t2 के कितने हो गए? यस गाइस, t2 के कितने वेरिएबल्स हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल? आवाज आ रही कि मेरी ठीक से? हाँ सर, क्लियर है. ओके, t2 के कितने वेरिएबल्स रहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल? अरे बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर वी राइट दी t2 इज इक्वल्स टू सैंपल, क्या करेगा वो? कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा. t2 के भी a और b क्या रहेगी वैल्यू? 10 एंड 20. और t2 के c और d की वैल्यू हेलो कॉल करने के बाद क्या होगी? 30 एंड 50. दोनों को सेम है, बट मुझे डिफरेंट चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं क्या? व्हेनेवर वी कॉल द कंस्ट्रक्टर, ऐसे सेल्फ कॉमा p कॉमा q, सेल्फ डॉट a इज इक्वल्स टू p, कल ही देखा है. सेल्फ डॉट b इज इक्वल्स टू ऐसे q. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कंस्ट्रक्टर कितने पैरामीटर्स ले रहा है? फर्स्ट पैरामीटर तो फिक्स है, सेल्फ मीन्स वो ऑब्जेक्ट, और कितने पैरामीटर चाहिए? 2 पैरामीटर्स. सो किधर देंगे हम? जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम. ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है? व्हेनेवर वी राइट द सैंपल राउंड ब्रैकेट. सो इधर क्या पास करना पड़ेगा हमें? ऐसे फॉर एग्जांपल 100 एंड 200, तो क्या होगा? क्या होगा? यस गाइस, क्या होगा? टी क्यू को असाइन करेगा. चलो थोड़ा सा, ओके चलो इधर ही लेता हूँ मैं. हमारा क्लास कौन सा है? सैंपल. क्लास इज अ सैंपल. उसके मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो फर्स्ट इज अ t1, second is a t2. Okay, so this one is your t1. t1 is a reference variable. Here is the t2 is a reference variable of second one. Okay, चलो अभी आप बोलो t1 is equals to, चलो ये भी थोड़ा सा निकालता हूँ, ये भी निकालता हूँ मैं. इधर 20 लिखता हूँ, इधर 20 लिखता हूँ, इसको भी निकालता हूँ. चलो फटाफट बोलो मुझे अभी. t1 इज इक्वल टू सैंपल लिखा तो क्या होगा? ए बी. ए बी इनिशियलाइज. क्या करेगा वो? कॉल क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ना. कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद t1 के अंदर कौन से दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे? ए बी. ए बी ना. सो ए की वैल्यू क्या रहेगी? 10, 10. बी की वैल्यू क्या रहेगी? 20. 20. ये तो क्लियर हो गया.
ओके देखो, उसके बाद T1 डॉट हेलो उसने कॉल किया, इंस्टेंस मेथड कॉल किया, कौन सा, हेलो। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके अंदर हेलो के अंदर और दो इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है, कौन से, सी एंड डी। और सी की वैल्यू क्या कर रहा है वो, फॉर एग्जांपल 30, और डी की वैल्यू क्या कर रहा है, सेट क्या कर रहा है, असाइन क्या कर रहा है, 40, राइट ना, एवरीबॉडी क्लियर। यस सर। ओके, तो इसमें और दो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, 30 और डी क्या होगा, 40। ओके, ये तो क्लियर हो गया सबको। इसके बाद समझो मैंने किया प्रिंट T1 डॉट बिट, तो क्या प्रिंट होगा, ABCD। जो भी उसके पास इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या है, उसके पास इंस्टेंस वेरिएबल ABCD। ये तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, T2 इज इक्वल टू सैंपल, क्या होगा, AB। यस, T2 के अंदर कौन से दो इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे, A AB। और B। A की वैल्यू क्या रहेगी, सेम 10 20, यस ना, और B की वैल्यू क्या रहेगी, 20। अगेन T2 डॉट हेलो किया तो क्या करेगा वो, और दो इंस्टेंस वेरिएबल उसके अंदर बनाएगा, कौन से, C एंड D। C की वैल्यू क्या रहेगी, 30, और D की वैल्यू क्या रहेगी, 40। ये तो सबको क्लियर है, यस। ये तो सबको Yes, क्लियर sir. हो गया। ओके, Yes, sir. बट देखो, ये जो T1 का A है और ये जो T2 का A है, उनके साथ कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। ये किसका है, T1 का है, और ये किसका है, T2 का है। ये भी किसका है, T1 का है, ये भी किसका है, T2 का है। ये C किसका है, T1 का है। ये C किसका है, T2 का है। ये D किसका है, T1 का, और ये D किसका है, T2 का। ये तो क्लियर हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ रिलेशन नहीं, रिलेशन एक ही है, क्या है, ये दोनों, we can say these are the two babies of the one parent, एक ही पेरेंट है उनका, सैंपल, और उनके दो बच्चे T1 एंड T2, दैट्स इट, अंडरस्टैंड, ओके, क्लियर, क्लियर अप Yes, टू sir. दिस टर्म। ओके, बट मुझे क्या चाहिए, T2 के ABCD की वैल्यू अलग चाहिए, 10 20 30 40 नहीं चाहिए, मुझे यूजर से चाहिए। सो लास्ट सेशन में देखा था हमने, मुझे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करनी है, कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यू पास करने की, ऐसे है P और इसको बोलेंगे हम Q, तो क्या होगा, चलो बोलो फटाक से। इफ आई से T1 इज इक्वल टू सैंपल 100 एंड 200, तो क्या होगा, इधर मार्कर नहीं आ सकता क्या, नहीं मार्कर नहीं आता इधर, चलो हाँ, क्या होगा, T1 इज इक्वल टू सैंपल 100 200, कॉल क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल करो। कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब कंस्ट्रक्टर को क्या पास करेगा, फर्स्ट क्या पास Get करेगा, T1, फर्स्ट क्या पास करेगा, T1, T1 किधर आएगा, सेल्फ में, ओके। सेकंड वैल्यू आएगी 100, 100 वैल्यू किधर आएगी, P में, और 200 वैल्यू किधर आएगी, Q में। ये तो क्लियर हो गया सबका, Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर, ओके। सो अभी सेल्फ कौन है, मेरा क्वेश्चन क्या है, सेल्फ कौन है, T1। T1 है ना। So, T1. T1 डॉट ए इज इक्वल टू पी, मीन्स क्या होता है, T1 डॉट ए इज इक्वल टू पी मीन्स क्या असाइन करता है, राइट हैंड साइड में क्या है, P की वैल्यू क्या है, 100। पोजिशनल 100. आर्गुमेंट 100 किधर जाएगा, P, ओके। सो T1 के A में 10 नहीं जाएगा, अभी क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी, 100। 100 ना, राइट, same. If I say 200 will be goes to your Q and self dot B is equals to Q, तो क्या होगा, T1 के सेल्फ मीन्स कौन है तुम्हारा, T1, T1 डॉट B is equals to Q, तो B की वैल्यू क्या रहेगी अभी, क्या 200। रहेगी, 200। ये तो क्लियर हो गया सबका,
यस, क्लियर अप टू दिस टर्म? हाँ सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आई से आई कॉल दी वन फंक्शन t1 डॉट हेलो। ये जो हेलो है उसको कॉल किया मैंने और पास किए पैरामीटर, जैसे कि मैंने पास किया 300 एंड 400। सो सेल्फ मीन्स कौन है अभी? ये सेल्फ मीन्स क्या है तुम्हारा? t1 है। ओके, सो हेलो में जो 300 पास करेगा अकॉर्डिंग टू पोजिशनल आर्गुमेंट, एक्स में क्या स्टोर होगा? 300, और 400 किधर स्टोर होगा? वाई में। ये तो क्लियर हो गया सबका? यस, क्लियर? अरे क्लियर हो गया क्या सबका? राइट? यस सर। ओके, चलो तो अभी इफ आई से सेल्फ डॉट सी, सेल्फ कौन है अभी? t1 है। इसको थोड़ा सा निकालता हूँ, अभी t1 के साथ ही हम खेल रहे हैं। सो t1 डॉट सी इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा x, तो x में अभी वैल्यू क्या है? 300 ना। 300। सो सेल्फ डॉट सी इज इक्वल्स टू 300 एंड सेल्फ डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? y किया तो क्या होगा? 400। 400। ओके, मीन्स ये 30 नहीं आएगी, ये क्या वैल्यू आएगी? 300, और ये क्या वैल्यू रहेगी? 400। क्लियर? इफ आई से प्रिंट t1 डॉट डिक्ट, क्या प्रिंट होगा? एनीवन? यस, क्या प्रिंट होगा गाइस? 100, 200, 100। 100, 200, 300, 400। क्लियर? अगेन मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, आई से t2 इज इक्वल टू सैंपल, और मैंने वैल्यू पास किया है, देखो 10, 15, 15, 25 से लिखता हूँ। और अगेन आई से t2 डॉट, चलो अभी ये सिंपल है, इसे 35, 45। अगेन आई से प्रिंट t2 डॉट ठीक, तो क्या प्रिंट होगा? t2 की डिक्शनरी कोई बोल सकता है? A15, B25, C35, D45. ओके, सिंपल है। सो तुम्हारे t2 के a की वैल्यू अभी क्या होगी? 10 नहीं रहेगी, इसकी क्या रहेगी वैल्यू? 15, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 25, इसकी वैल्यू रहेगी 35, और इसकी वैल्यू रहेगी 45। दैट्स इट। तो मैंने t2 का डिक्शनरी प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। आ गया 15, 25, 35, 45। क्लियर? यही देखा था कल। एवरीबॉडी क्लियर? सर हाँ बोलो। एक डाउट है, ये T1 इज इक्वल टू सैंपल किया आपने, T1 डॉट हेलो किया, मतलब डॉट और इक्वल्स टू का कुछ ये है क्या? नहीं, आवाज नहीं आया आपका, फिर से बोलोगे क्या आप? हाँ हाँ सर, ये T1 इज इक्वल्स टू सैंपल किया आपने, राइट? और हाँ T1 बराबर। डॉट हेलो किया, हाँ, तो ये इक्वल्स टू और डॉट सेम है क्या कुछ, मतलब? नहीं, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? इक्वल्स टू मीन्स क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या होता है देखो, पहले इसका मीनिंग समझो। सैंपल राउंड ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट बनाता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बराबर है। हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल का, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट को अभी तक हमने कुछ नाम नहीं दिया है, अभी तक कुछ नाम दिया है क्या? बस ऑब्जेक्ट बनाए। तो whenever we write like this, t1 is equals to sample, जो ऑब्जेक्ट बनाए उसका नाम क्या होगा अभी? T1। t1। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो क्लियर हो गया। सो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली कॉल क्या करता है? ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। हाँ सो ओके, जब वो समझा। ऑटोमेटिक कॉल होगा तो पास दी 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर पास करो, उसको 2 पैरामीटर चाहिए तो। हाँ सर, समझा अभी।
ओके क्लियर? मतलब एट ए टाइम क्रिएट भी हो रहा है, कॉल भी कर रहा है। कॉल भी कर रहा है, ऑटोमेटिक कर रहा है वो। ओके सर। क्लियर? सबको क्लियर हो गया अप टू दिस मोमेंट? यस, एवरीबॉडी क्लियर? चलो अभी आप हाँ बताओ। हाँ सर। आई से R is equals to 300 and I say मैं बोलता हूँ चलो सेल्फ डॉट E is equals to R। तो T1 में क्या आएगा और T2 में क्या आएगा? सर कॉल ही नहीं किया, पैरामीटर पास नहीं, मतलब वैल्यू नहीं पास की, तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? इसलिए फंक्शन का वीडियो देखो, फंक्शन का प्रैक्टिस करो। इतना इतना अच्छे से मैंने वो फंक्शन एक्सप्लेन किया है। तो आर क्या है अभी इधर? कोई बोल सकता है आर क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। आपने पास किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बराबर है ना? चलो इधर नहीं देता मैं, थोड़ा सा इधर डिफिकल्ट होगा, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे ये इसको निकालता हूँ, के अंदर देता हूँ। चलो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये ओके, तो इसको कट करता हूँ मैं, इसके अंदर देता हूँ। चलो इसे सेल्फ डॉट आर इज इक्वल टू ऐसे 1000। चलो आप देखो अभी क्या होता है, देखो मैंने ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने। जब मैं हेलो कॉल करूंगा ऐसे T1 डॉट हेलो, उसको कितने पैरामीटर चाहिए? एक्स वाई और इसको जेड बोलता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट जेड की वैल्यू उसको कंपलसरी नहीं है। समझो पास किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। समझो कि मैंने बोला 300 400 एंड 500, तो जेड में क्या होगा स्टोर? 500। 500 1000 जाएगा, ये 1000 जाएगा, उसकी जगह क्या पास होगा? 500। ओके, बट T2 के हेलो के लिए देखो, T2 के हेलो कितने वैल्यू पास कर रहा है? 35 45। 35 किधर जाएगा? एक्स में, 45 वैल्यू जाएगी वाई में। बट जेड को थर्ड वैल्यू पास नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है? 1000। ओके, और वो जेड असाइन किया मैंने ई को, तो T1 के ई की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? 1000 500। 1000 कैसे आएगी? T1 के ई की T1 की 500 आएगी। 500 आएगी ना, हमने पास किया है। और T2 के ई की वैल्यू क्या आएगी? हमने पास नहीं किया, तो 1000 आएगी T2 की। 1000 आएगी। क्लियर हो गया? क्लियर सबका? यस सर। चलो अभी देखो, और मैं बोल रहा हूँ कि चलो ऐसे हेलो में मैं लिख रहा हूँ एक्स कॉमा स्टार ARGS। ओके, और इसमें लिख रहा हूँ ARGS ऑफ 0, इसमें लिख रहा हूँ ARGS ऑफ 1। क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, T1 का ही देखते हैं। चलो गाइज, अभी तुम्हारे साइड से रिप्लाई चाहिए। मैंने लिखा 600 700 800 900। ओके दैट्स इट। ओके, फर्स्ट क्या कॉल करेगा? T1 इज इक्वल टू सैंपल, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। T1 के ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी? चलो गाइज, T1 के ए और बी की वैल्यू 100 एंड 200, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद Yes, देखो T1 डॉट हेलो कॉल किया और मैंने पास किया है 300 400 500 600 700 800 एंड 900। सो अकॉर्डिंग टू पोजिशनल आर्गुमेंट, फर्स्ट क्या है? सेल्फ। सेल्फ मीन्स क्या होगा? T1 होगा, करंट ऑब्जेक्ट T1 है ना। सो सेल्फ क्या होगा? अभी T1 होगा। सो T1 उसके बाद x है। सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है हेलो का? 300। 300 की वैल्यू किधर जाएगी? x में जाएगी। ये तो क्लियर हो गया सबका? यस सर। ओके, उसके बाद कितने वैल्यू है देखो? 400 500 600 700 800 एंड 900, 5 वैल्यू है। इट इज कॉल्ड एज
वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये पूरे जो भी है कितने आर्गुमेंट है 5, वो पूरे किधर जाएंगे स्टार ARG. ARGS में एंड स्टोर एज अ वन लिस्ट. ओके, सो ARGS लिस्ट क्या होगी? सर टपल होगा ना? हाँ सॉरी, टपल होगा. ओके, सो इट विल बी क्रिएट एज अ वन टपल. सो टपल में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 300, 400. 500. तो उसके फर्स्ट बाद वैल्यू 400 आएगा ना? हाँ सुनो सुनो पहले. All couples, sorry, all tuples will be stored inside that but it requires only two couple of values 0 and 1. Okay, but it takes the all values. कितने वैल्यू पास किए देखो? 300, 400, 500, 600, then 700, then 800 and 900. ये पूरा किस में आएगा? एक टपल में ARGS में आएगा. 300 x में जाएगा ना? कौन सा? 300. वही मैं देख रहा हूँ, आपका ध्यान है क्या नहीं? 300 तो ऑलरेडी मैंने बोला ना इसमें जाएगा. ओके गाइस, क्लियर? अकॉर्डिंग टू पोजिशनल आर्गुमेंट फर्स्ट जो है 300, ये किधर जाएगा? एक्स में जाएगा ना? Yes, sir. सर हाँ बोलो. सर वो आर्ग्यूमेंट का नहीं समझा, नेटवर्क इशू था. ओके चलो, अभी देखो मैंने पास किया है 300, 400 एंड 500. ओके, तो मुझे कितने इधर पैरामीटर चाहिए? कितने चाहिए? 3 चाहिए ना? वैल्यू कितने पास कर रहे हो? 3 पास कर रहे हो, तो कितने पैरामीटर चाहिए? 3 चाहिए. ये तो क्लियर हो गया. हाँ. ओके, Yes, sir. बट मैंने दिया है देखो, एक सी दिया है और दूसरा पैरामीटर है ARGS. ओके, और इसने वैल्यू पास किया है कितने देखो? 600, 700, 800 एंड 900. सो अकॉर्डिंग टू पोजिशनल आर्गुमेंट ये जो 300 वैल्यू है ये तो बाय डिफॉल्ट एक्स में जाएगी. बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? रिमेनिंग कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है ना, और एक ही वेरिएबल है, एक ही पैरामीटर है. सो एक ही पैरामीटर में हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. और वो स्टोर कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ द टपल. इन द फॉर्म ऑफ द टपल. ओके, सो टपल को हम कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग इंडेक्सिंग. ARGS 0 मीन्स क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 400. ARGS ऑफ 1 मीन्स कौन होगा? 500. ARGS 2 कौन होगा? 600, 3, 4 एंड सो ऑन. क्लियर? यस और नो? क्लियर हो गया? जिसको आर्गुमेंट का Yes, समझ में नहीं आ रहा है, आप फंक्शन का एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, उसका सेशन देखो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो फंक्शन का थोड़ा सा. ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? अभी T1 की डिक्शनरी कोई बोल सकता है? A 100, B 200, C 300, 400, D 400, E 500. बराबर है क्या? देखते हैं, चलो आ गया. A B C D E. Instead of this one, if I say 3, ARGS of 3 and ARGS of 4, तो अभी क्या आएगी डिक्शनरी T1 की? D में 700 स्टोर होगा, E में 800 स्टोर होगा. ओके, देखते आ गया 700 एंड 800. अंडरस्टैंड? अभी मैंने लिखा, चलो 0 1 2 3 4 5 ना. ओके चलो, मैंने 5 लिखा और 6 लिखा. क्या होगा? दूसरा कोई बोल सकता है कि आंसर क्या आएगा? अभी चलो गाइस, आंसर क्या आएगा? अभी T1 की डिक्शनरी 100, 200, 300. व्हाट अबाउट दी D एंड E? सर ARGS 6 Error कैसे देगा. होगा सर? आउट मतलब एक्स्ट्रा इंडेक्स आ रहा है ना, वो एरर देगा ना. तो 5 तक के इंडेक्स आएगा ना? Error 6 देगा. वाला इंडेक्स ही नहीं है ना, एरर देगा ना. क्या देगा एरर? Out of the range. इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना. हमारा लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या है? 5 ही है.
और हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, 6 वाला एलिमेंट ही नहीं है ना, राइट ना? Yes, sir. ओके, समझ में आ गया सबको? चलो, Yes. T2 के लिए कर रहा हूँ मैं, T2 को भी एग्जीक्यूट करता हूँ। उसको ARGS को पैरामीटर 35, 45, 55, 75। चलो, T2 का कोई बोल सकता है डिक्शनरी क्या आएगा? सर एरर आएगा सर। हाँ एरर एरर आएगा? आएगा। हाँ सर इंडेक्स एरर आएगा ना सर फिर से सर। कैसे तो इंडेक्स एरर ARGS आएगा? 4 ARGS 5 कर रहे हैं सर उसकी वजह से। ओके चलो, मैंने इसमें किया 0 और इसमें किया 1। चलो अभी बोलो T2 का डिक्शनरी साइज। यस, 15, 25, 35, 45, 55। ये 15 किधर जाएगा, 25 किधर जाएगा? ए और बी में ना। Maybe. A15 35 B25 किधर जाएगा? एक्स में, तो सी की वैल्यू क्या होगी? X 35। X 45, 55, 75 ARGS में जाएंगे, बट ARGS 0 कौन है? 45। ARGS 45 1 कौन है? 55। 55 तो देखो T1 और T2, 15, 25, 35, 45, 55। क्लियर हो गया सबका? हो गया क्लियर सबका? Yes sir. ओके चलो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इफ आई से एक देता हूँ, चलो जेड देता हूँ, जेड यूज नहीं किया ना। आई से जेड इज इक्वल टू 100, जेड इज इक्वल टू 100, और मैं लिख रहा हूँ इधर प्रिंट कर रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा सा कमेंट देता हूँ। आप वो कमेंट निकाल के एग्जीक्यूट करो एक बार। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इफ आई से प्रिंट, ये निकालता हूँ, इसको T2 ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ मैं। अभी T1 और T2 के पास कितने इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, कोई बोल सकता है? यस, कोई बता सकता है T1 और T2 के पास कितने इंस्टेंस वेरिएबल हो गए? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? 3, sir. 3. 3 कैसे हो गए बताओ? ये पाई से प्रिंट T1 डिक्शनरी, प्रिंट T2 डिक्शनरी, क्या प्रिंट होगा? मैंने हेलो को कॉल नहीं किया है, हेलो इंस्टेंस मेथड को कॉल ही नहीं किया है, तो क्या होगा? खाली क्या होगा? ए और बी प्रिंट होगा सर। ए A और बी and B होगा sir. ना, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ना बाय डिफॉल्ट, तो दोनों में क्या रहेगा? ओनली ए एंड बी ना। हाँ सर। ओके क्लियर? चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी देखो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ। ये पाई से प्रिंट P1 डॉट ए, क्या प्रिंट होगा? 100, 100. ये पाई से T2 डॉट ए 15, 15, राइट ना? ओके, बट देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। ऐसे प्रिंट ऐसे T1 डॉट, जेड लिखा है ना, जेड प्रिंट T2 डॉट जेड। देखो अभी आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो आउटपुट क्या है। T1 के ए की वैल्यू 100 आ गई, T2 के ए की वैल्यू 15 आ गई,
T1 के z की वैल्यू 100 और T2 के z की वैल्यू 100। वाई? मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली बोला था। चलो गाइस बोलो फटाफट। सो दिस जेड इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मीन्स क्या रहता है कि वो क्लास के अंदर रहता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कौन सा भी है, जेड ना, ये जेड इज इक्वल्स टू 100। दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल, मीन्स वो क्लास के अंदर है। वो जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, आप आपसे T1, T2, T3 जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू क्या होगी? 100। 100 होगी। वो खुद की नहीं होगी, वो क्या होगी? क्लास की कॉपी होगी। सो मेरा सेंटेंस क्या है? इन केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड। इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी क्या रहती है? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट रहती है। बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल दी ओनली वन कॉपी विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी नहीं रहती, एक ही सिंगल कॉपी रहती है और वो कॉपी शेयर करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंस सबको समझ में आ गया? यस सर। डिफरेंस सबको समझ में आ गया क्या? जैसे कि हमारे घर पे जो कंप्यूटर रहता है, अभी मेरे घर पे जो कंप्यूटर है कौन एक्सेस करेगा? मैं ही करूँगा। ओके, बट समझो कॉलेज में प्रैक्टिकल करते वक्त वो जो कंप्यूटर है वो कौन एक्सेस करेगा? मैं भी कर सकता और मेरे क्लासमेट भी कर सकते हैं ना, राइट? एवरीबॉडी क्लियर? यस। यस सर। मेरे घर का कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, और जो तुम्हारे कॉलेज के लाइब्रेरी लैब में है कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड एज योर क्लास वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। वो कौन एक्सेस कर सकता है? हर एक ऑब्जेक्ट, मीन्स हर एक स्टूडेंट। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दैट स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल? सो ये जो तुम्हारा जेड है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। ये तो समझ में आ गया? हाँ ये सर। सब? ओके चलो। यस। ओके नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल मुझे समझो T1 के ए की वैल्यू चेंज करने का है। कैसे कर सकते हैं हम? सर हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो स्टैटिक बोलो। वेरिएबल और मेथड सर क्लास नेम से एक्सेस होता है ना डायरेक्ट, मतलब? नहीं नहीं, वो आगे देखेंगे क्लास मेथड उसका यूज क्या आगे देखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना स्टैटिक वेरिएबल? ओके चलो। अभी नहीं सर। मुझे T1 का ए की वैल्यू क्या है? अभी T1 के ए की वैल्यू क्या है? 100 100 है। मुझे 200 चाहिए, कैसे करेंगे? इज इक्वल अरे टू अभी, हाँ बोलो, हाँ बराबर है। T1 डॉट ए इक्वल टू A1 200। डॉट A 200 ना। उसके बाद समझो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऐसे T1 डॉट ए, और इसको थोड़ा सा कमेंट देता हूँ मैं। ओके, T1 डॉट ए को छोड़ता हूँ, बाकी सबको कमेंट करता हूँ। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? T1 के ए की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या थी T1 के ए की? 100। उसके बाद मैंने उसको क्या चेंज किया है? 200 से। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? 200 ना। एवरीबॉडी विथ मी? यस और नो? एवरीबॉडी विथ मी? यस सर। यस सर। ओके ओके चलो देखते हैं। आ गया 200। पहले क्या था? 100। बाद में मॉडिफाई करने के बाद क्या आ गई वैल्यू? ये वाला क्या प्रिंट दे रहा है? 200, राइट ना? बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे T1 डॉट जेड और ऐसे T1 डॉट जेड, देखो अभी प्रिंट करने के बाद क्या आएगा? क्या रहे? फर्स्ट वैल्यू क्या थी? फर्स्ट वैल्यू 100। ओके, थोड़ा सा इसको कमेंट देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। इसको कमेंट करता हूँ। I say print
T1.z और उसके बाद मैंने पहले पहले जेड की वैल्यू क्या 100 है ना, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है 200। 200 ना, चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल चेंज भी हो सकता है क्या सर? वही मैं बोल रहा हूँ, चेंज हो रहा है क्या, यस सर, हो रहा है। हो रहा है। चेंज हो रहा है ना। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आउटपुट देखो, थोड़ा सा कमेंट करो। नाम है मेरा, आवाज आ रहा है ठीक से। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था आपका। ओके, अभी आ रहा है ना ठीक से। बस अंडरस्टैंड करो मैं क्या करूँ। पहले प्रिंट किया T1.z, बाद में प्रिंट किया T2.z, बाद में किया सैंपल डॉट, सैंपल किया हमारा सैंपल क्या क्लास, उसका टेबल कौन सा जेड, उसकी वैल्यू सेट करो और बाद में T1 और T2.z प्रिंट करो। ये क्या कर रहा है? समझ में आएगा? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर नेटवर्क इशू है शायद। बहुत हो रहा है क्या। ब्रेक हो रहा यस है। सर, आवाज ब्रेक हो यस रहा है। सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। मोबाइल से कनेक्ट किया है, वाईफाई शायद प्रॉब्लम है। चलो देना तो फिक्स कब टाइम है, मेरा लिमिट तो हो गया शायद। मोबाइल खत्म हो गया शायद। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मीटिंग एंड किया है क्या? नहीं सर, आएंगे।
एंड हो गया मीटिंग।